Morning student, myself Chirag Sukhani from Rocket BB College Vapi, and I'm going to teach you fundamental of economics subject. And we will continue our chapter, that is what cost analysis. Now in last session what we did, that is opportunity cost. First cost concept, that is opportunity cost. Now what is opportunity cost? The opportunity cost of any commodity is what? Sacrificing or foregoing the next best alternative commodity. पढ़ा था ना. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी कमोडिटी इज व्हाट? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कमोडिटी दैट इज सैक्रिफाइस और फॉरगॉन. इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी involves sacrifice of the production of another commodity. Okay, so today in this session we will discuss the next concept, though it is not in syllabus, that is accounting and economic cost, but you should know what is accounting and economic cost. Okay, so next is what? Cost concept, that is accounting cost and economic cost. So first, what is accounting cost? Now accounting cost are what? Accounting cost are the actual cost which is incurred by the firm in order to produce the product. Okay, so it is the actual cost which is incurred by the firm, and it referred to payment made for the use of land, payment made to the use of labor employed, then interest on loans borrowed, cost of raw material, power charges, fuel charges, and so on. Okay, so these are the payment made for the contractual obligation. Contractual obligation मतलब we have to pay. इन शॉर्ट, अगर फर्म ने लॉस किया, फर्म ने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया एंड लॉस बेयर किया, देन ऑल्सो फर्म हैव टू पे दिस टाइप ऑफ कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. एंड दिस कॉस्ट आर recorded in the books of accounts. Okay, and this accounting cost, it is also known as what? Explicit cost. Clear all of you? So simple सा टर्म है कि अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होता है कि अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट विच इज़ इनकर्ड बाय द फर्म इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट. ओके, सो इट रिफर टू द मनी पेमेंट, यानी एक्चुअली मनी पेमेंट होता है. ओके, ना मनी पेमेंट कौन सा हो सकता है? दैट इज पेमेंट मेड फॉर द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट मेड फॉर द पावर चार्जेस, फ्यूल चार्जेस, payment made for the interest on the loans. Okay, payment made for the labor which is used in order to produce a product. So all the money payment can be considered as what? Accounting cost. Okay, so these accounting costs are the actual cost which is incurred by the firm na, so it is recorded in the books of account, and this cost, it is also known as what? Explicit cost. Clear? So opposite, next topic, that is economic cost. Now what is economic cost? Now economic cost are the cost of self-employed and self-owned resources of the firm. Now self-employed and self-resources of the firm, it means suppose I as a manager of company or I as a owner of the business, मेरा खुद का business है and I am a owner of the business. So, okay, now if I use the capital, if I use the land on that is for construction of factory building, okay, I use the factory building. Okay, so मेरा खुद का, I as a owner, मेरा खुद का मनी, मेरा खुद का ज़मीन, मेरा खुद का फैक्ट्री बिल्डिंग मैंने यूज़ किया. ओके, एंड उसके ऊपर मैं पेमेंट लेता हूँ, दैट इज़ व्हाट? इंटरेस्ट ऑन दी लोन्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके, देन रेंट ऑन द फैक्ट्री बिल्डिंग, देन रेंट ऑन द लैंड, उसके ऊपर भी जो मैं पेमेंट लेता हूँ ना, दिस कॉस्ट, इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक कॉस्ट. ओके, सो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेल्फ रिसोर्सिस ऑफ द फर्म. ओके, तो समझ में आया ना? सपोज मैं ही बिजनेस का ऑनर हूँ और मेरी ही ज़मीन है, उसके ऊपर मैं रेंट लेता हूँ, मेरा ही कैपिटल है बट मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ, मैं खुद सर्विस देता हूँ और उसके ऊपर सैलरी चार्ज करता हूँ. दिस ऑल कॉस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक कॉस्ट. ओके, सो दिस कॉस्ट डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट. ओके, यानी कंपल्सरी पेमेंट नहीं होता है. एंड दिस कॉस्ट
are not included by the accountant of the firm in his accounting books. Okay, and this cost it is also known as what? Implicit cost. तो ये कॉस्ट खाली दिखाने के लिए होता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड्स नहीं होता है. क्लियर? सो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड द सेल्फ रिसोर्सेज ऑफ द फर्म, एंड दिस कॉस्ट do not involve any contractual payment, are not included by the accountant of the firm in his accounting statement, and this cost it is known as what? Implicit cost. Now here one simple hypothetical example is given, that is example of small own firm. एक पर्सन है, उसका खुद का फर्म है, एंड ओनर ऑफ द फर्म मैनेज द फर्म हिमसेल्फ इन हिज ओन लैंड. उसके खुद की ज़मीन के ऊपर वो अपने बिजनेस को संभाल रहा है. सो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट और अकाउंटिंग इनकम? सो सिंपल सा, फर्स्ट इज व्हाट? सेल्स. सो सेल्स 4 लाख का है. नाउ सेल्स में से माइनस क्या करना है? कॉस्ट. ना आपको पता है ना प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस इज व्हाट? सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट, सो आइदर वी कैन गेट प्रॉफिट और आइदर वी कैन गेट दी लॉस. ओके, सो फर्स्ट सेल्स. नाउ लेस माइनस करना है, तो माइनस ऑल दी कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाय द फर्म. तो ये छोटा सा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, तो खाली 3 कॉस्ट लिया, दैट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 2 लाख रुपीज़, cost of salaries 20,000 rupees, depreciation charges 10,000. So total of this that is 2,30,000. So 4 lakh में से 2,30,000 गया, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या आया? 1,70,000. ओके, सो अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाय द फर्म. एक्चुअल कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाय द फर्म, एंड इट रिफर टू सर्टन मनी पेमेंट मेड बाय द फर्म. क्लियर? So here according to the accounting profit, the profit of the firm is what? 1,70,000. Likewise economic statement. Now economic statement of profit, it is different because here apart from the accounting cost we also include the economic cost. ओके, तो जब भी इकोनॉमिक स्टेटमेंट बनाना है, सो अपार्ट फ्रॉम द अकाउंटिंग कॉस्ट द फर्म ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरिंग सर्टन इकोनॉमिक कॉस्ट. ओके, तो सेल्स 4 लाख का 4 लाख. नाउ लेस में सर्टन कॉस्ट माइनस करना है. सो फर्स्ट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 2 lakhs का, सैलरी 20,000 का, डेप्रीशिएशन इन दी 10,000. नाउ दिस 3 कॉस्ट इज व्हाट? अकाउंटिंग. नाउ अपार्ट फ्रॉम द अकाउंटिंग कॉस्ट इट ऑल्सो इंक्लूड द इकोनॉमिक कॉस्ट. सो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉस्ट क्या लिया? दैट इज इम्प्यूटेड सैलरीज ऑफ ऑनर 48,000 एंड इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन द ऑनर्स कैपिटल, दैट इज व्हाट? 15,000. इट मीन्स ऑनर है, ऑनर ने खुद सर्विस दिया, उसका सैलरी चार्ज किया, दैट इज़ व्हाट? इम्प्यूटेड सैलरी. ऑनर है, उसका खुद का कैपिटल है, बट उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, दैट इज़ व्हाट? इम्प्यूटेड इंटरेस्ट. सो ऑल दिस कॉस्ट के आप ऐड करोगे ना, सो वी कैन गेट दिस अमाउंट. सो 4 लाख माइनस दिस, सो वी कैन गेट 1,07,000. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट, द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज व्हाट? 1,07,000. क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा ऊपर आपको पढ़ लेना है और खाली मीनिंग पढ़ लेना है कि अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाय द फर्म एंड इट रिफर टू सर्टन मनी पेमेंट मेड बाय द फर्म. Whereas इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड द सेल्फ ओन रिसोर्सेज ऑफ द फर्म. सो एग्जाम्पल क्या होगा? दैट इज इम्प्यूटेड सैलरीज फॉर देयर ओन सर्विसेज, इंटरेस्ट for their own capital. These are the example of economic cost. Clear all of you? चलो next concept, that is money cost and real cost. Now ये syllabus में हाँ, that is money cost and the real cost. So first of all, what is money cost? Now the name itself suggests money cost. So money cost क्या है? That is a total money expenses which is incurred by the firm in order to produce the commodity. ओके, यानी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी मनी एक्सपेंसेस है ना, दैट इज कंसिडर एज व्हाट? मनी कॉस्ट. सो मनी कॉस्ट इज व्हाट? टोटल मनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द फर्म इन प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी. ओके, सो मनी कॉस्ट क्या क्या हो सकता है? दैट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, देन वेजेस टू लेबर, सैलरीज टू लेबर,
Okay, then expenditure on machinery and equipment, interest on capital, then expenses like advertisement, insurance premium, taxes are the example of money cost. So simple सा टर्म है कि मनी कॉस्ट क्या होता है कि मनी कॉस्ट आर द टोटल मनी एक्सपेंसेस which is incurred by the firm in order to produce the commodity. So example of money cost, that is cost of raw material, then wages and salaries to labor, then interest on capital, insurance premium, depreciation charges, taxes and so on. Clear? Now while analyzing the money cost, the firm or the economist taken into account the explicit cost and the implicit cost. Okay, whenever the firm analyzing the money cost, the economist taken into considering the explicit cost and the implicit cost. So what is explicit cost? The explicit cost क्या होता है कि explicit cost refers to the actual payment made by the firm, and this actual payment made by the firm, it is recorded in the books of account. It is also known as what? Accounting cost. Okay, and this explicit cost, it include wages and salaries to labor, transportation charges, electricity bill, cost of raw material, power and fuel charges and so on. So जो हम लोग ने accounting cost पढ़ा ना, this is nothing but explicit cost. So explicit cost क्या होता है? Actual payment made by the firm in order to produce a product. Now actual payment है, so these costs are recorded in the books of accounts. Okay, so example of explicit cost क्या होगा? That is cost of raw material, power and fuel charges, insurance premium, depreciation, okay, wages and salaries to labor and so on. These are the example of implicit cost. So what is implicit cost? Okay, implicit cost is what? It refers to the cost which is never paid or it is never received. Okay, हम लोग ने पढ़ा ना इकोनॉमिक कॉस्ट. दिस इज व्हाट इम्प्लिसिट कॉस्ट. सो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है कि implicit cost are those cost which is never paid, which is never received, but they are imputed, they are calculated in the production process. Okay, यानी जो भी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होगा उसमें ये इंक्लूडेड है अंदर. ये कॉस्ट सेपरेटली नहीं दिखाया जाता है बट ये कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है. Okay, so these are the imputed, these are the calculated in the production process, and this implicit cost, it is also known as what? Economic cost. Okay, so example of economic cost क्या होगा? That is interest on the owner supplied capital, then rent for his own land, salary for his own services are the example of implicit cost. In short, मनी कॉस्ट को एक्सप्लेन करना है तो वो टाइम पे इकोनॉमिस्ट हैज़ टेकन इनटू कंसिडरिंग द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड द इम्प्लिसिट कॉस्ट. सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट विच इज़ इनकर्ड बाय द फर्म एंड इट रिफर टू द मनी पेमेंट. वेयर एज इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? दोज कॉस्ट विच इज़ नेवर पेड, विच इज़ नेवर रिसीव्ड. सो दिस आर द कॉस्ट ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड and self-resources of the firm. Okay, so these costs are only calculated, these costs are only imputed in the production process, but these costs are not recorded in the books of account. So example is what? Interest of self-supplied capital. Suppose मैं ऑनर हूँ, मैं अपने बिजनेसेस में 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ. दैट इज़ व्हाट? इंटरेस्ट ऑन द सेल्फ ओन कैपिटल. ओके, सपोज मेरा फैक्ट्री बिल्डिंग है बट मैं उसके ऊपर रेंट चार्ज करता हूँ. दैट इज़ रेंट ऑन सेल्फ सप्लाइड फैक्ट्री बिल्डिंग और सेल्फ ओन फैक्ट्री बिल्डिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट. क्लियर? सो लास्ट इज व्हाट? रियल कॉस्ट. Last topic is what? Real cost. So what is real cost? कि real cost of producing anything is what? Disutility or dissatisfaction to the factors which is used in the process of production. यानी process of production में जो हम लोग जो भी factors use करते हैं वो factors का disutility, वो factors का dissatisfaction, this considered as what? Real cost of production.
So real cost of production is what? Real cost of production is anything is the disutility or dissatisfaction by the factors which is used in the process of production. So best example ये ले लेना, एक example आप लिखोगे चलेगा, that is the laborer who work experience fatigue and dissatisfaction in work. यहाँ तक लिखोगे चलेगा. सपोज लेबर है, लेबर काम कर रहा है, ओके. नाउ लेबर वो काम से डिससेटिस्फाइड है, वो लेबर काम करके थक गया, फटीग हो गया, ओके. सो दिस इज व्हाट रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज हम लोग को तो उसको सैलरी पे करना ही है, ओके. उसका प्रोडक्शन थोड़ा बहुत कम निकला बिकॉज ऑफ दिस डिसयूटिलिटी एंड डिससेटिस्फैक्शन, बट वी हैव टू पे द फुल सैलरी, फुल वेज रेट, ओके. सो लेबर का डिसयूटिलिटी और डिससेटिस्फैक्शन और फटीग हो जाना इन वर्क में, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रियल कॉस्ट. सो रियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनीथिंग इज व्हाट? डिसयूटिलिटी और डिससेटिस्फैक्शन टू द फैक्टर्स विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. अनदर यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, नहीं याद रहे, इट्स ओके. द कैपिटलिस्ट हु हैव टू फॉरगो करंट कंजप्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. ओके, एक कैपिटलिस्ट है, पैसे वाला इंसान है ना. वो कैपिटलिस्ट क्या करता है? अपना जो एक्चुअल कंजप्शन करना है वो कंजप्शंस नहीं करता है, और ओनली सेव द मनी एंड ओनली मेक द इन्वेस्टमेंट. दिस इज व्हाट रियल कॉस्ट. ओके, देन एंटरप्रेन्योर हु फेस अनसर्टेनिटी एंड द रिस्क आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल कॉस्ट. नाउ दिस concept of the real cost, it is not useful for analysis because dissatisfaction and disutility cannot be measured, it cannot be quantified. Okay, so disutility and dissatisfactions को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं. सो ये कॉस्ट को प्रोडक्शन में और इकोनॉमिस्ट में और एनालाइजिंग पर्पस में यूज़ नहीं किया जाता है. इट इज़ ओनली एक्सप्लेन कि दिस आर द रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Clear all of you? So real cost of producing anything is what? Disutility or dissatisfaction which is used in the process of production. Clear? So एक ही example लिख सकते हो, that is laborer who work experience fatigue or and dissatisfaction in work. These are the example of real cost. Now ये concept 2 marks में आ सकते हैं कि what do you mean by money cost, real cost? What do you mean by opportunity cost? ओके ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आंसर लेने दिए, सो माइट पॉसिबल का राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, सो हम लोग ने यहाँ पे 3 मेन टॉपिक कंप्लीट किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रियल कॉस्ट एंड मनी कॉस्ट. मेन फोकस ऑन ओनली 2 मार्क्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेशन हम लोग पढ़ेंगे दिस टॉपिक, दैट इज शॉर्ट रन कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक. ओके.